staff and students welcome you all once again on this memorable journey. Thank you. थैंक यू राजदीप। माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना, इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपना कार्यक्रम जारी रखना चाहते हैं। This is the time we all are waiting for. So without further ado, I, Rishi Yadav, And I, Samarthya Jain, take pride and honor in welcoming you all to this evening of cultural extravaganza. let us see together a colorful rainbow of programs unfold. But before that, let me introduce you all to the honorables we have among us today. May I have the privilege to introduce our honorable chief guest, Sri Arun Yadav ji. He is a well-known name in the nation as well as in the state. Born and brought up in a renowned political family, he carried on the legacy and values inculcated from his father, late Sri Subhash Yadav ji. His father was an acclaimed politician. He followed the footsteps of his father and gained popularity among masses at a very young age. He dedicated his life for farmers and poor masses. He became the member of parliament and rendering his services in Manmohan Singh government as the Minister of State for Heavy and Food Processing Industries. He also served as the President of Pradesh Committee, Congress Committee. He is an inspiration for youth and students. किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने के कारण हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अरुण यादव जी हमारे मध्य शिरकत नहीं कर पाएंगे, परंतु उनका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं हमारे साथ बनी हुई हैं। Our first guest of honor is a well-known personality who needs no introduction. Born in a small village of Baktara, he carried the tradition, values and ethics of his soil and family. He did his higher studies from MVM College, Bhopal, became the college president and stepped in the world of politics. He served at various posts in Congress party. He led the voice of the people of Budni after becoming the MLA of Budni. He also became the education minister under Digvijay Singh government. Always believed in service as a first motto, he has inspiration for the present and upcoming generation. Now, may I take this opportunity to welcome Shri Raj Kumar Ji Patel. I would like to request Shri Narendra Singh Ji Bhati to welcome our honorable chief guest, Shri Raj Kumar Ji Patel with a bouquet. Can we have a big round of applause for them? We welcome you, sir. Thank you, sir. Now, I would like to welcome our special guest. Born in a village named Joshipur, he became popular among the masses by his immense hard work and clear objective. At an early age, he became the president of Budni block, led to various developmental work in Budni and nearby, gained huge popularity among people. आपकी मिलनसारता और आपका सरल और सहज स्वभाव सभी को आपसे जोड़ता है। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री महेश जी राजपूत का। आपका स्वागत है सर। I would like to request Sri Surendra Singh Ji Bhati to welcome our special guest Sri Mahesh Ji Rajput with a bouquet. Thank you, sir. We have among us the founder, president of Rai Sahib Bhavar Singh Group of Institution, Thakur Indrajit Singh Ji Bhati. Rai Sahib Bhavar Singh College, established in the year 2000, laid the foundation of Rai Sahib Group of Institutions, which was formed in the memory of Sri Rai Sahib Bhavar Singh Ji of Sotia with his noble motive of girl-child education. Now, I would like to request our respected principal, Mrs. Sutapa Jaiswal, to welcome our founder, president, Thakur Indrajit Singh Ji Bhati with a bouquet. We welcome you, sir. Friends, we are living in that country where we remember our God before starting any good work. बिल्कुल सही। हमारी भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं मुख्य अतिथि एवं सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे आएं और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। May I request Principal Ma'am to accompany them?
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीमभयदां Thank you all. Thank you so much, Shama ma'am, for this wonderful song. Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to mind, flight to imagination, and charm and gaiety to life and everything. Now, to begin this auspicious event, here comes the school choir with the welcome song.
That was an excellent performance by our little stars. Indeed, it is. अब आगे के मंच संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त शुभानी सिद्धना और साक्षी पवार का। वे आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सामर्थ्य ऋषि। मैं शुभानी सिद्धना पुनः राय साहब भवर सिंह पब्लिक स्कूल प्रांगण में उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथिगणों का इस शुभ संध्या पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हेलो शुभानी, आज विद्यालय में बड़ा हर्षोल्लास का वातावरण है। कुछ विशेष पर्व है क्या? हाँ साक्षी, आज हमारा वार्षिक उत्सव है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पर वार्षिक उत्सव का विषय? धैर्य रखो, वही तो बताने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है साहित्य, संस्कृति और शौर्य। क्या? साहित्य, संस्कृति और शौर्य? कुछ इनके विषय में भी तो बताओ। हाँ, बताती हूँ। साहित्य मानव मन में तरंगित होने वाली ललित भावनाओं और अनुभूतियों की शब्दों में सार्थक और कलापूर्ण अभिव्यक्ति है। यह साहित्य मानव मन की रमणीय कलापूर्ण अभिव्यक्ति है जो निराकार, अनादि, अनंत अक्षर ब्रह्म की शब्द शक्ति भाषा के रूप में साकार होकर संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कराकर नश्वर को शाश्वत से संयुक्त करती है। भारतीय मनीषा इसीलिए साहित्य का हेतु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मानते हैं। अरे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, साहित्य जनता के चित्त वृत्त का संचित प्रतिबिंब है, क्योंकि साहित्य में समाज के विविध रूपों का समावेश होता है। साहित्य समाज में समाज का चेहरा दिखता है। वस्तुतः साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं होता, दर्पण स्वयं निष्क्रिय होता है। साहित्य जड़ नहीं होता, वह चेतना से उत्पुट है तथा सचेत कर सुधार की प्रेरणा देता है। बिल्कुल सही साक्षी। साहित्य के बारे में जानकारी में बहुत उत्साहित हो गई हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक होगा। अरे, तुमने अभी तो साहित्य के विषय में ही जाना है, क्या तुम संस्कृति और शौर्य के विषय में जानना नहीं चाहोगी? हाँ, अवश्य। संस्कृति, सत्य, शिव और सुंदर, ये तीन शाश्वत मूल्य हैं जो संस्कृति से निकट से जुड़े हैं। ये संस्कृति ही है जो हमें दर्शन और धर्म के माध्यम से सत्य के निकट लाती है। यह हमारे जीवन में कलाओं के माध्यम से सत्य को निकट लाती है और सौंदर्य प्रदान करती है तथा सौंदर्य भूतिपरक मानव बनाती है। ये संस्कृति ही है जो हमें नैतिक मानव बनाती है और दूसरे मानव के निकट संपर्क में लाती है और इसी के साथ हमें प्रेम, सहिष्णुता और शांति का पाठ पढ़ाती है। अर्थात संस्कृति मानव जीवन में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता, युग युगांतर में संस्कृति निर्मित होती है। हाँ, भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है। भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि है। विश्व की पहली और महान संस्कृति, विविधता में एकता की अनुरक्त समीकृति
विविधता में एकता की अनुरक्त समीकृति। और शौर्य? शौर्य अर्थात साहस, पराक्रम और हिम्मत। अरे शौर्य के बारे में तो मैं भी जानती हूँ, चलो इस कविता के माध्यम से बताती हूँ। शौर्य शायद एक हौसला, शायद एक हिम्मत हमारे बहुत अंदर, मजहब के बनाए दायरे तोड़कर किसी का हाथ थाम लेने की हिम्मत, गोलियों के बेतहासा शोर को अपनी खामोशी से चुनौती दे पाने की हिम्मत, मरती मारती इस दुनिया में निहत्ते डटे रहने की हिम्मत। शौर्य आने वाले कल के खातिर अपने हिस्से की आज की कायनात को बचा लेने की हिम्मत, आज बचा लेने की हिम्मत। तभी तो हमारे कार्यक्रम का नाम है त्रिविधा। त्रिविधा अर्थात 3 विधाओं का समावेश, साहित्य, संस्कृति और शौर्य। विषय परिचय के बाद अब आगे के मंच संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने दोस्त ऋषि यादव और सामर्थ्य जैन को। Thank you, Sakshi and Subhani. Lord Ganesha, the Sukkarta, the Dukharta, the God of wisdom, we pray to you to grace your hello upon us. Now, I would like to welcome our students who will perform Ganesh Vandana. Can we have a big round of applause for them?
चन्द्राय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चढ़ायो अच्छा गजमुख को मंदिर लाल विराजे सित गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सरोवर को महिमा कहे न जाए लाग कहूँ पद को जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या समदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरे राम रघुदास जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या समदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरे राम रघुदास जय देव जय देव भगत से कोई शरणागत आवे संपत्ति संपत्ति सब ही भरपूर पावे हरि से तुम महाराज मोह अति भावे गोसावी नंदन नित्य दिन